transpose of a matrix. तो definition बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो. Suppose A is a matrix 2, -1, 3, 0, -4, 7, and this is a matrix of order. क्या order है इसका? मैम 3/2. 3/2. Now its transpose is denoted by A dash, and it is obtained by writing 2, 3, the 4. rows 2, 3 -4 और सेकेंड रो में -107. by writing the rows in columns. So first row is 2 minus 1, so it will become first column. Second row is 3, 0, it will become second column. -4, 7, right? And now what is the order? मैम 2/3. 2/3. So this is transpose. Very simple concept. That if the matrix is of order 3/2, it has become 2/3. If it is of order m by n, it will become n by n. And another important thing which we need to observe over here is that in the matrix A, if I say A12, in the matrix A, is matrix में A12 is 3, first row, second column. A12 is 3. Not 3, A12, first row, second column. मैम A डैश का बताना है या A का बताना है? A का. A12 is? A12 is मैम -1. Minus. And here, this -1 reaches here at this position, and this element is A21. ठीक है? तो A12 जो इस मैट्रिक्स A में था, it has become 2/1th element में. इसी तरह से जैसे इस मैट्रिक्स में A23 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कैसे सेम ही आएगा 0. So here it is at A22, same position. कोई और नहीं लेते. Suppose I take A32. A32 is 7, and this 7 here becomes A23. मतलब इस मैट्रिक्स का जो ijth एलिमेंट है, how you will understand? ijth. ijth element of the matrix A becomes jth element of the matrix A dash. right, becomes jith element of the matrix A. ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है. So how do we define transpose of a matrix? Definition कैसे लिखते हैं? If A equal to Aij m by n, इसका मतलब वो बड़ी वाली m by n मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी. If A equal to Aij m by n is a matrix मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ ऑर्डर m by n, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है ऑफ ऑर्डर m by n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of.
it is denoted by A dash. ठीक है, अब जैसे इस मैट्रिक्स में 2 3 -4 इसका फर्स्ट कॉलम था, तो ये इसकी फर्स्ट रो बन गई। -1 0 7 सेकेंड कॉलम था, तो ए डैश की वो सेकेंड रो बन गई। तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए एक तरह से। 2 -1 फर्स्ट रो थी, तो ये यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन गया। नहीं, so the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called, it is denoted by A dash, and its order is n by m. ठीक है, then next is properties. Properties of transpose. Now the first property is that if we take transpose of the transpose matrix, then it will equal to the equation मतलब matrix first. अगर हम इसका ट्रांसपोज दोबारा से ले ले, तो ये 2 3 -4 जो फर्स्ट रो है, ये फिर से फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और ऊपर वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ही -1 0 7 जो है सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स itself. Then the second property, A plus B dash, अगर टू मैट्रिक्स का सम है, उनका ट्रांसपोज is always equal to A transpose plus B transpose. मतलब मैट्रिक्स को ऐड कर दो और फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले दोनों का ट्रांसपोज ले लो और फिर उन्हें ऐड कर दो, तो आंसर सेम होगा। Then third is KA transpose equal to K times A transpose, where K is some scalar, K is some real number. तो KA transpose is same as K times A transpose. पहले KA कर लो फिर ट्रांसपोज दे लो, या पहले A ट्रांसपोज कर लो फिर K से मल्टीप्लाई कर लो, the answer comes out to be same. And fourth property which is very important, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ AB. AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज, पहले B का ट्रांसपोज आता है फिर A का ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज B ट्रांसपोज A। हम इसको A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं लिख सकते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ऊपर डिस्कशन में हमारे रह रही है, दैट इज दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से शायद नहीं करी हमने, इसीलिए रह गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मतलब कि AB is not equal to BA in general. टाइम खत्म हो गया था ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रह गया था। They doesn't exist. क्या Ma'am, they doesn't exist. What doesn't exist? AB and BA. No, they may exist. Even if they exist, AB may not be equal to BA. Meaning you may have suppose A equal to, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे। ठीक है ना, तो A मान लो इक्वल टू सम AIJ है of order 2/3 and B equal to BJ K of order 3/4। अब इस केस में A भी एग्जिस्ट करेगा, A भी एग्जिस्ट करेगा,
मैम नहीं। क्यों? ए का ऑर्डर 2/3 और बी का ऑर्डर 3/4। मैम मैम नहीं करेगा। क्यों? मैम मल्टीप्लिकेशन में जो m इंटू m/n और p/q होते हैं, उनके जो फर्स्ट वाले वो होते हैं जैसे m/n, तो m/p से मतलब वो होने चाहिए। तो इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ए बी में? क्या इक्वल होना चाहिए? अगर ए m/n है तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करने के लिए? मैम बी का ऑर्डर भी मैम b इज इक्वल टू bj के है या b क्या है ये? बीजे के, मैंने जैसे हम लिखते हैं शॉर्ट में बीजे यस के लिखा है। बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर ए कोई मैट्रिक्स b/n है तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए फॉर द प्रोडक्ट टू एग्जिस्ट? मैम जो b इज इक्वल टू हाँ, सिर्फ ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैम m ए m/n है तो बी क्या होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर? n/q। n बाय कुछ भी है ना, सम यस मैम। n बाय समथिंग, p हो q हो जो भी। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी ये भी मल्टीप्लाई होता है। तो क्या यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है? मैम है। फिर मैम इसलिए कंफ्यूजन हुई, तो यहाँ पे i/j और jk भी तो अलग हैं। उससे कुछ मतलब नहीं है, वो तो j की वेरिएशन है कि i 1 to 2 जा रहा है तो j 1 to 3 जाएगा। यहाँ पर भी j 1 to 3 जा रहा है क्योंकि मैं j लिख चुकी थी तो इसलिए मैंने ऑर्डर 3/4 किया। j तो 1 to 3 जा रहा है ना, तो वो इसको भी सूट कर रहा है, इसको भी सूट कर रहा है। यस मैम। तो ए भी एग्जिस्ट बट बी ए डजंट। डजंट। तो ये हो सकता है कि एक एग्जिस्ट करे एक ना एग्जिस्ट करे, तो देयरफॉर ए बी नॉट इक्वल टू। ये भी हो सकता है कि ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो मान लो ऑर्डर 2/2 का है और बी भी ऑर्डर 2/2 का है, तो अब बताओ ए बी एग्जिस्ट करेगा? हम्म, अब ए बी एग्जिस्ट करेगा? मैम मे बी। क्या मे बी? मैम कर सकते हैं। कर सकता है मतलब श्योर बताओ ना, कर सकता है तो क्या मतलब? क्यों? अगर ए का ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर 2/2 है, तो क्या ए भी एग्जिस्ट करेगा? मैम हाँ, करेगा। करेगा, ये इसके इक्वल है। क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा? बीए। यस मैम। बी ए भी करेगा। जब भी स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस अगर हैं तो उनका ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट कर। अब यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल टू बी ए। अब ए बी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा मल्टीप्लाई कर? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल आएगा? ये एलिमेंट क्या आएगा प्रोडक्ट का? C11। C11 है 5। हाँ, किसके इक्वल आएगा? 5। हाँ, नेक्स्ट एलिमेंट C12। हम्म, C12 10। 10। नाउ C21। 2। 2 and C22। 8। ठीक है।
और इसी तरह से ये बी ए किसके इक्वल होगा? बी ए करो जरा, 1 4 माइनस 2 2, बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे, के बाद में 3 माइनस 1 2 0, इलेवन 3 प्लस 8 11, हाँ नेक्स्ट मैम 2 कैसे? सॉरी Next मैम -1 -1, हाँ यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मैम -2 मैम 2 अब ए बी और बी ए इक्वल है, नो मैम तो ए बी इज नॉट इक्वल टू, अब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी कि ए बी और बी ए इक्वल टू। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ए बी और बी ए, हमें ए बी को बी ए या बी ए को ए बी नहीं लिखना है, ठीक है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमारी ये रह गई समहाउ, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ AB and C हाँ equal to product of BC and A. ए इंटू बी सी, ए पहले बोलो, Yes, है ना, ma'am. ए पहले और बी सी बाद में, क्योंकि हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बी सी इंटू ए नहीं लिख सकते, है ना। Yes, ma'am. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है Is equal to मल्टीप्लिकेटिव A आइडेंटिटी एग्जिस्ट तो अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m by m इंटू आई, आई का ऑर्डर हमें क्या लेना, वही m by, तो a इंटू आई विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स A, same order, and this will be equal to I into I M by M order फिर A M by M. so multiplicative identity exists in the set of square matrix. In the set of square matrices of the same order, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब आई का जो रोल है वो, आई का रोल जो है वो 1 वाला रोल है, जैसे मैथ्स में 3 इंटू 1 3 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है ना, -4 इंटू 1 -4 होता है, 3/2 इंटू 1 3/2 होता है। इसी तरह से यहाँ पर ए को जब हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस मैट्रिक्स ए ही मिलता है, ठीक है। ए को जब भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे वापस मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, और आई ए करेंगे तो भी ए ही आएगा। लेकिन ए अगर हमारे पास m by n मैट्रिक्स है तो इस केस में आई मैट्रिक्स क्या लेनी पड़ेगी, अगर हमें आंसर में ए चाहिए तो आई मैट्रिक्स हमें स्क्वायर में, मैम वो तो फिर ये इसमें तो जो आई है वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। हाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो जिससे प्रोडक्ट आ जाए, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए ए इंटू वट इक्वल टू M by M एन बाय, हाँ N एन बाय एन,
आई का तो ऑर्डर स्क्वायर ही होगा, n बाय n। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगी ऑफ ऑर्डर n बाय n। लेकिन इसमें अब IA नहीं हो सकता, यस मैम। है ना। IA करना है तो फिर मुझे I जो है वो m बाय m का लेना पड़ेगा, तब IA होगा। अब a आ गई ऑफ ऑर्डर m। तो इसलिए क्योंकि इसमें I हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर ऑर्डर n वाला I है और यहाँ पर ऑर्डर m वाला I है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम नहीं देते। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तभी होती है जब वो सेम ऑर्डर की हो, जैसे यहाँ पे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि I जो है वो चेंज हो गई, नई मैट्रिक्स आ गई, वो n बाय n की है, ये ऑर्डर m की है। तो क्योंकि ऑर्डर n से ऑर्डर m पे हमें जाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम नहीं देते। बुक में इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई, बुक में सिर्फ यहाँ तक ही लिखा हुआ है। पर तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर m बाय n मैट्रिक्स है और मुझे आंसर में a चाहिए, तो मुझे n बाय n लेनी पड़ेगी। जितने कॉलम्स हैं उतने वाली स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी ai के। और IA करना है तो जितनी रोज है A की उतनी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब कॉन्शियस माइंड में हमें पता होना चाहिए, बट इट इज नॉट कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन दिस केस। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट। तो अब मैम लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ बेटे, मैम क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, distributive property is simple, that if you have A into B equal plus to B C, plus C and then AB plus AC. provided वही सब that the order is they are compatible for multiplication, तभी ये possible है कि एक order कुछ या square matrices हो, ABC are square matrices of the same order, then ठीक है, and this similarly will be equal to B plus C into A। तो नहीं आ सकता, कॉम्पिटिटिविटी नहीं होती है, बस इतना। प्रोवाइडेड या लिख लो where ABC are, where ABC are square matrices of the same one, otherwise they should be compatible for multiplication and addition। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज दिस, दैट इफ यू हैव a स्क्वायर, ये हमने वैसे भी बात की थी, दिस इक्वल टू A इंटू A, ठीक है। इफ यू हैव a क्यूब, इट मीन्स A स्क्वायर इंटू A, which is same as A into A into A। तो इस जैसे हम मैथ्स में पावर की बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है अलजेब्रा में। मैथ्स में मतलब अलजेब्रा में जैसे पावर की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ भी। Next important thing is that if you have A plus B whole square, what this is equal to? मैम A square plus B square plus 2AB Plus 2AB। कोई प्लस 2AB में प्रॉब्लम है? देखो A plus B होल स्क्वायर क्या है? A plus B into A plus B, जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है। यस मैम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके इसको ओपन करो, क्या आएगा? टर्म वाइज मल्टीप्लाई करो, A into A क्या आएगा? ओपन द ब्रैकेट्स, यस मैम। जैसे अलजेब्रा में करते हैं। मैम A square AB मैम फिर BA B square। ठीक है। अब ये AB प्लस BA, क्या हम इसको 2AB लिख सकते हैं? नो मैम। नहीं लिख सकते ना, तो वो 2AB वाली बात गलत हो जाती है, ठीक है। अगर हमें दे रखा है कि AB इक्वल टू BA, तब तो ठीक है। अगर AB इक्वल टू BA दे रखा है फिर तो 2AB हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें AB प्लस BA ही लिखना है, ठीक है। तो जो तुम्हारे अलजेब्रा वाले फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी नहीं है। अगर होल क्यूब करना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हमारा वैसे अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में क्या होता है ये मैम a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये इक्वल आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल बनेगा? क्या बनेगा देखो, ओपन करके देखो इसको। मैम a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यस ओपन करो ए बी ए बी माइनस ये माइनस बी नहीं, हाँ माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको काट सकती हूँ? नो मैम। नहीं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इक्वल नहीं, राइट। क्योंकि ए बी और बी ए के लिए मेरे पास कम्यूटेटिविटी नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास समथिंग लाइक है ए प्लस आई का होल स्क्वायर, तो इस केस में जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए आई आ जाएगा, प्लस आई ए हो जाएगा। अब ए आई और आई ए इक्वल होता यस मैम। है ना। तो ये जो है दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 ए आई, राइट। तो ए आई और आई ए क्योंकि इक्वल होता है, देखो हमने लिखा ना ए आई इक्वल टू ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो ए आई और आई ए क्योंकि इक्वल होता है तो इसलिए यहाँ पर चल जाएगा, और ए और आई यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तभी ऐड हो रही है, वरना ऐड ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इस केस में चल जाएगा 2ab वाला फॉर्मूला अगर आई है तो। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आई स्क्वायर है तो चल जाएगा। तो ये बात करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो तभी होल्ड करते हैं जहाँ कॉम्यूटेटिविटी हो। तो यहाँ पर क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी है इसलिए होल्ड कर रहा है, where a and I are square matrices of the same order, राइट। समझ आ गया ये? तो ये सारा खेल कम्यूटेटिविटी का है। दीज आर द प्रॉपर्टीज यू शुड नो। नाउ नेक्स्ट जो हमें इसमें करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैम जो हमने ट्रांसपोज का फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था वही है, बस स्क्वायर के लिए होना चाहिए। A square matrix A equal to Aij m by n is A said dash to be equal to symmetric matrix, said to be symmetric if A transpose equal to A। अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A है तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अब अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे हमारे पास मान लो A एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3,
और अगर इफ A इज सिमेट्रिक, तो हमारे पास क्या आएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो A इज सिमेट्रिक, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A इम्प्लाइज, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी। इक्वल टू मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। ठीक है, ये आ गया ऐसे, A ट्रांसपोज Yes, ma'am. इक्वल टू A. A इज सिमेट्रिक implies A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो ये, अब इसमें देखो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल मैट्रिसेस का हमने क्या पढ़ा था, कब होती है मैट्रिसेस इक्वल, कब होती Ma'am, है, A is equal to B जब सारे for all element ij। हाँ, तो कब होती है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्या कंडीशन बनती है, मैम ऑर्डर सेम हो हाँ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम इक्वल हो। हाँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, इसका मतलब ये A21 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 इसके A21 के सेकंड वाले के A21 के A21 जो लेफ्ट साइड में है ये राइट साइड में किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, मैम A12। A12, तो इसका मतलब A21 A12 के इक्वल होना चाहिए। यस मैम। इसी तरह से ये A31 ये किसके इक्वल होना चाहिए, A13। A13, है ना। इसी तरह से ये देखो ये A23 ये किसके इक्वल होना चाहिए, A32। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमारे पास क्या आया, A21 इक्वल टू A12, A31 इक्वल टू A13, A23 इक्वल टू A32, ये आ रहा है ना। यस तो मैम। ये जब भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी उसमें ये आईजेथ एलिमेंट जो है अपने जीआईएथ एलिमेंट के इक्वल होगा, A12 इक्वल टू A21। तो इसका मतलब दैट इज इफ A इज सिमेट्रिक, then Aij इक्वल टू AJ, Aij जो है वो AJI के इक्वल होगा फॉर ऑल I कॉमन। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आईजेथ एलिमेंट जो है वो जीआईएथ एलिमेंट के इक्वल होगा। एलिमेंट तो सारे ए मैट्रिक्स के ही है ना, कि जो मैंने इधर लिखे और इधर लिखे हैं तो यही वाले एलिमेंट, और तो कोई मैट्रिक्स हमने ली नहीं, इसका ट्रांसपोज लिया, तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसको तुम्हें याद कर, इफ A is a symmetric matrix then ijth element of A is always equal to jith element। अगर ijth और jith एलिमेंट इक्वल नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकती, इसका ट्रांसपोज जो है वो उस मैट्रिक्स से इक्वल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जैसे मैंने, मान लो मुझे क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है,
तो हम कैसे लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो हम यहाँ पर डायगोनल में कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी के लिखते हैं, राइट? अब यहाँ पे एक साइड में चाहे अपर ट्राइंगल ले लो या लोअर ट्राइंगल ले लो, उसमें भी कोई भी एलिमेंट्स लिख लो अपनी मर्जी के। मान लो तुमने लिख लिया 6, तुमने लिख लिया 1, यहाँ पर तुमने लिख लिया -1। अब इसको अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो इसका ijth एलिमेंट और jith एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स खुद अपने इक्वल बनेगी। तो ये यहाँ पे ये जो एलिमेंट है दिस इज a12, तो a12 किसके इक्वल होना चाहिए? a12 किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू a21। तो यहाँ पर हमें 6 लेना पड़ेगा, a21। इसी तरह से ये 1 है तो यहाँ पर हमें 1 लेना, ये 1 3 है, ये 3 1 हो गया। यहाँ पर ये -7 है a23, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? -7 a3। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी लिखनी होती है हम क्या करते हैं कि ijth एलिमेंट और jith एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं। और कभी भी हमें चेक करना पड़ जाए कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ijth एलिमेंट और jith एलिमेंट उसके इक्वल है या नहीं। तो 6 6 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, -7 के। फास्ट अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करते हैं, 2 3 -7 ऐसे हमने कुछ भी नंबर, 4 0 6। अब क्या करोगे कि ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 4 0, सेम एलिमेंट अगर फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगी। तो 2 4 0 फर्स्ट रो है तो इसको इसका फर्स्ट कॉलम भी बना। इसी तरह से 4 3 6 सेकेंड रो है तो इसको इसका सेकेंड कॉलम बना 4 3। अब जब इस मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज लोगे तो वो ये खुद ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ijth और jith एलिमेंट इक्वल है। समझ आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यस बेटा बोलो। यस मैम। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a square matrix A equal to aij इक्वल टू m by माइनस n, A equal to aij m by n is set to the skew symmetric if A transpose equal to -a। उसमें कंडीशन थी A ट्रांसपोज इक्वल टू A, इसमें कंडीशन है A ट्रांसपोज इक्वल टू -। तो उसमें aij इक्वल टू aji था, यहाँ पर ijth एलिमेंट विल बी इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ jith एलिमेंट। ठीक है, तो ijth एलिमेंट of A will be equal to ijth element of A will be equal to jith element of A. jith element of A, sir. ijth element of A should be equal to negative of jith element of A. तो इसका जो ijth एलिमेंट है वो jith एलिमेंट के नेगेटिव होगा, मतलब कि aij इक्वल टू -aj। जब तुम A ट्रांसपोज इक्वल टू -a करोगे ना, जैसे ऊपर मैंने A ट्रांसपोज इक्वल टू A करके दिखाया था,
इसी तरह से अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा A12 इक्वल टू माइनस A21, A23 इक्वल टू A32, लाइक। तो Aij माइनस Aj के इक्वल होगा इफ I इज नॉट इक्वल टू J, और जो इसमें Ai एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 बनेगा। ठीक है, Ai एलिमेंट जो है वो 0 बनेगा। समझ में आ गया? यस मैम। जैसे मान लो तुमने ये मैट्रिक्स लिखी, मान लो तुमने यहाँ पर ले लिया एक्स वाई से, ठीक है। अब ये यहाँ पे तुमने एलिमेंट्स ले लिए 2 3 माइनस, अब वहां पे हमने x23 लिखा था, यहाँ पे x23 फर्स्ट कॉलम में ही आएगा, लेकिन इसका निगेटिव आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, -2 यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, 3 1। और ये यहाँ पर आ जाएगा 1। लेकिन ये जो एक्स वाई जेड मैंने डायगोनल में लिखे हैं, जब तुम इसको इसका ट्रांसपोज लेके अब इक्वेट करोगे तो ये यहाँ पे इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, तो इसको अगर हम ट्रांसपोज विद नेगेटिव साइन दें तो हमारे पास आ जाएगा -x2 -2 y माइनस, y। तो ये आ जाएगा 3 - 1 z। x A ट्रांसपोज भी है इसका x23 मैम वहाँ पे -3 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर -3 है, माइनस ऑफ दिस, ये 2 आ गया y, ये यहाँ +1 आ जाएगा। वहाँ पे +1 होगा। ऐसे लिखने से ना बेटा गलती कंफ्यूजन होगा, ये नहीं, ये चीज नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हें इनके ना प्रूफ डिटेल में कराना नहीं चाह रही, क्योंकि प्रूफ सब आने नहीं है। वैसे तो मैं इनका प्रूफ कराया था मैंने क्लास में, मैं एग्जाम्पल दे के ही तुम्हें समझा रही। यस तो मैम। इसमें मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होता है तो उसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि Aij इक्वल टू -Aj है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Aii जो है दैट विल बी इक्वल टू -Ai होगा ना। जे की जगह मतलब आई और जे, इसको हटा दो, Aij इक्वल टू -Aj, तो इसमें Ai इक्वल टू -Aii बनेगा। जब Aii इक्वल टू -Aii बनेगा तो 2Aii इक्वल टू 0 बनेगा, तो इसका मतलब Aii जो है वो 0, क्योंकि ये तो फॉर ऑल आई होता है। तो फिर ये हमारे पास ये आ जाता है रिजल्ट कि Aii 0 एंड Aij इक्वल टू -Aji, I नॉट इक्वल टू, और जब I इक्वल टू J होगा तो एलिमेंट 0। तो ये तो वैसे फॉर ऑल Ij भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इक्वल टू -0 तो हम कहते ही है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। और जब भी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखोगे, उसका जब एग्जाम्पल लिखोगे क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, क्योंकि हमने ये कंक्लूड कर लिया कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स में 0। अब यहाँ पर कोई भी नंबर अपने चॉइस के तुमने लिख, ठीक है। -2। अब जब इधर एलिमेंट्स लिखोगे तो इसका फर्स्ट रो 0 2 3 है, इसका फर्स्ट कॉलम जो है इसका नेगेटिव बनेगा, तो 0 का नेगेटिव -0 0 ही होता है, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3 और ऐसे ही सेकेंड रो है -2 0 -1, तो जब इसको कॉलम वाइज लिखेंगे तो -2 का 2 चला गया 0 -1 का 1। तो ijth एलिमेंट जो है वो jith एलिमेंट के नेगेटिव होता है, ठीक है।
जब हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक थी तो इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट थे 6 6 1 1 -7 माइनस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ए आई आई 0 आएगा क्योंकि ए आई आई एलिमेंट की पोजीशन सेम ही रहती है जब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। A11 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, A22 भी अपनी जगह पे रहेगा। तो इसको हम सिमेट्रिक क्यों कहते हैं? अगर मान लो मैं इसको फोल्ड करती हूँ इस लाइन के अलावा, जैसे हैंकी को हम ट्राइंगुलर फोल्ड करते हैं, तो ये जब इसको इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के ऊपर फोल्ड करके ऐसे मैच करोगे, एक के ऊपर एक रखोगे, तो 6 जो है 6 पर ओवरलैप करेगा, 1 1 पर ओवरलैप करेगा, -7 -7 पर ओवरलैप, इसलिए इसको सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक किसी लाइन के अलाउंग होती है ना, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल के अलाउंग अगर हम फोल्ड करते हैं तो एलिमेंट सेम एलिमेंट ओवरलैप, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। तो अब ये थ्योरम है जो तुम्हें माइंड में रखनी है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as sum of a symmetric and a sum of a symmetric and a skew symmetric. Sum of a symmetric and a skew symmetric matrix unique. तो कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, हम उसको सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं ऑलवेज। कैसे लिखते हैं? हमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है तो हम लेते हैं ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। पहले इसका प्रूफ पेपर में आता भी था, पर अब प्रूफ आएंगे नहीं, तो तुम इसको याद कर लो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हमें अगर सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो इस थ्योरम को तुम यूज करोगे। A is any square matrix where A is एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। any square. क्योंकि टाइम कम है ना, सेक्शन के बिगनिंग में तो मैंने सारे प्रूफ कराए थे बच्चों। तो A इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए। ये जो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश है ये सिमेट्रिक होता है हमेशा, और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, तो यहाँ से हाफ ए आएगा प्लस हाफ ऑफ ए डैश आएगा, नेक्स्ट में हाफ ऑफ ए आएगा और माइनस हाफ ऑफ ए डैश। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हाफ ए प्लस हाफ ए जो है ए के इक्वल। तो ए जो है एल्जेब्राइकली इसके इक्वल। ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज a symmetric matrix, ठीक है, हमेशा सिमेट्रिक। ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये भी थ्योरम है। और ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक। और हाफ ऑफ दोनों का लेके अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर ए आता है। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि अगर हम ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करते हैं
कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज करो और वो खुद ही आ जाए। अब अगर a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करते हो तो ये किसके इक्वल आएगा? प्रॉपर्टीज यूज करो। हाँ, a ट्रांसपोज प्लस, मैंने अभी दिया था ना a प्लस बी ट्रांसपोज, यस मैम, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। यस मैम, अब a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? डबल ट्रांसपोज। ए a, और ये यही मैट्रिक्स आ गई ना, a प्लस ए डैश, इट इज सेम Yes, एज a प्लस ए डैश, एडिशन तो कॉम्पिटिटिव होता है। तो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज जो है a प्लस ए डैश के ही इक्वल है। तो देयरफॉर a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज जो है, इसको इसी तरह से करके देखना अपने आप। इसका जब ट्रांसपोज लोगे तो ये जो है a माइनस ए डैश बन जाए, ठीक है। नेगेटिव हो गया ना इसका, माइनस ऑफ a माइनस ए। तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ट्रांसपोज करके उसका नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो और जब भी हम सिमेट्रिक। तो जब भी हमें चेक करना होता है हम ऐसे करके चेक करते हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लिखना आ गया, समझ आ गया? यस मैम, अब इसमें जो है एक्सरसाइज 3.3 ये कर लेना, ओके मैम, ठीक है। और इसके बाद ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस तुम्हारे कोर्स में नहीं है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस लिखा है ना, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। इनवर्स हम करेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो एक्सरसाइज 3.4 तुमने नहीं करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 करके मिसलेनियस एग्जांपल्स जहाँ पे लिखा है, यस मैम, इसमें ये बहुत लॉन्ग वाले क्वेश्चन मत करने बैठना, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन ये सब मत करना, तुम्हें तो एमसीक्यू आने हैं ना। तो जो छोटे वाले क्वेश्चन है वही करना। तो इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज ये ट्राई कर सकते, ओके मैम, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो ये अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जैसे इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस, ये है शो दैट द मैट्रिक्स b dash ab, show that b dash ab is symmetric or skew symmetric according as a is symmetric or skew। तो ये कह रहा है कि b dash ab जो है ये सिमेट्रिक होगा if a is symmetric, और b dash ab जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक if a is skew symmetric। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, कैसे समझोगे? इसके ऊपर एमसीक्यू आया था तुम्हें पेपर में, कैसे समझोगे? हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है कोई भी मैट्रिक्स? किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसका? b dash उसका ab का ट्रांसपोज करना होगा। उसका ट्रांसपोज करेंगे। अब ये किसके इक्वल होगा? मैंने तुम्हें अभी प्रॉपर्टीज लिखवाई है ना ट्रांसपोज की। यस मैम, तो प्रोडक्ट में क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रोडक्ट में क्या प्रॉपर्टी होती है? मैम
बी डैश प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर तुम्हारे पास बी सी ट्रांसपोज होते किसके इक्वल होता है? मैम बी सी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? क्या लिखा है मैंने? बी सी ट्रांसपोज होगा मैम बी 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 एंड सी का ट्रांसपोज। हाँ, बी एंड सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट के लिए क्या लिखवाया है मैंने ट्रांसपोज का? जैसे ए प्लस बी ट्रांसपोज हो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है? बी सी ट्रांसपोज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। फिर और अभी क्या समझाया था मैंने? सी ट्रांसपोज पहले आता है, यस मैम। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है? ये तो दो के लिए होता है। अगर मान लो तीन है, ए बी सी ऐसे ट्रांसपोज, तो ये क्या बनेगा? सी ट्रांसपोज, इधर से स्टार्ट करो, फिर बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, हमेशा उल्टा चलता है ये, ठीक है? तो अब बी ट्रांसपोज ए बी इस पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? क्या बनेगा? लगाओ ये वाला लॉजिक। ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज, आगे यहाँ से उल्टा लगाना शुरू करो। मैम बी बी ट्रांसपोज फिर ए बी एक एक करके लगाओ। बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा ना, तीनों के ऊपर ट्रांसपोज बनाना है, तो इस पर ये डबल ट्रांसपोज हो गया, तो ये क्या बनेगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है? ए बी ट्रांसपोज। ये इस पूरा जो हमें गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल है, वो ए बी ट्रांसपोज नहीं लिखा, ऐसे रहने दो। तो अगर इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी? ए ट्रांसपोज ए हाँ, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है अगर ए सिमेट्रिक हो तो? ए ट्रांस किसका ट्रांसपोज बताना है? इफ ए इज सिमेट्रिक तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? A is a symmetric matrix, क्या डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? मैम फिर वो ए जे आई के ट्रांस तो एलिमेंट की बात करें, मैं डेफिनेशन की बात करूँ। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के। ए के, ये लिखवाया ना मैंने यहाँ यस पर। मैम। A symmetric matrix A is said to be, a square matrix A is said to be symmetric if A transpose equal to A, ये लिखवाया नहीं? यस मैम। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि A ट्रांसपोज A के इक्वल होना चाहिए। मैम तो मैंने ये ही बताया था, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो मुझे लगा गलत है। A ट्रांसपोज A और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ गया। यस तो मैम। B डैश A B का होल डैश किसके इक्वल हुआ? ये इसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल हो गया, ठीक है ना? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज खुद के इक्वल हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर बी ऐसे लेट p इक्वल टू
बी ट्रांसपोज ए बी, तो पी डैश इक्वल टू दिस, ऐसे कर, तो पी डैश इक्वल टू दिस आएगा, तो ये हमारे पास पी डैश जो है वो इक्वल टू, ये हमने इसको बी डैश ए बी को पी लिया, तो पी डैश इक्वल टू पी आ गया, तो इसका मतलब पी इज सिमेट्रिक। ऐसे ही अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो पी डैश इक्वल टू माइनस पी बन जाएगा। यस मैम। इसको सोचना बैठ के, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने थॉट प्रोसेस तुम्हें समझा दिया, ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक ये वाला पार्ट करना, नहीं समझ में आया तो मैं, इसमें जो ए ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू माइनस ए होगा, हाँ तो यहाँ माइनस से लिखोगे ना तो माइनस बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के। और फिर उसे जो हमने लिया है कि ए ये वाला ऊपर वाला बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, इसमें अप्लाई करके हम कर सकते हाँ हैं। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी बन जाए, ठीक है, ये Yes. प्रूव कर देना, तो इसको अपने आप लिखना, सोचना, फिर मैं डिस्कस करूंगी। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज और 3.4 जो है 3.3 सॉरी, ये दोनों कंप्लीट कर लेना इस वीक, ठीक है बेटे, तो तुम्हारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर टाइम हो तो एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस कर लेना मैथ्स। ओके मैम। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझे मैसेज डाल, ठीक है, ओके मैम। ओके बाय। थैंक यू मैम।